So Victorian age started in the year 1837 and ended in the year 1901. Our topic for today is Victorian age, which has started in the year 1837 and ended in the year 1901. So Victorian age is known as Victorian age because the ruling queen at that time was Queen Victoria. That's why it is called as Victorian age. Victorian age को Victorian age इसीलिए कहा जाता है because उस time ruling king Queen Victoria थे. Let's get into the history of England. In the last class, we have learned that George III was the king, and he was known for his madness. After that, his son George IV came to the monarch. After that, George IV's brother William IV came, and after the death of William IV, his niece Victoria, Queen Victoria, came to the crown. So, in the history of United Kingdom and the British Empire, the Queen Victorian period was the period of Victorian regime from 1837 to 1901, and she was the longest monarch. मतलब इन्होंने जितना रूल करे थे उतना और कोई क्वीन रूल नहीं करे थे इनसे पहले, और she was crowned at the very young age of 18 years. So Queen Victoria जब 18 years के थे जब she sat on the seat and she faced ruling the extensive large empire over 4,000 million people, included the nations Australia, New Zealand, Canada, South Africa and India. तो जब क्वीन विक्टोरिया क्राउन पे आए तो इन 400 मिलियन पीपल से ज्यादा बड़ा एम्पायर था, उन सबको इन्हों रूल करे, और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, साउथ अफ्रीका और इंडिया इन सब पे भी इन्हों रूल करे बिकॉज उस टाइम कॉलोनाइजेशन हो गया था. ब्रिटिश अपने कॉलोनीज ये सारे कंट्रीज में बना दिए थे और ये सारे कंट्रीज पे ब्रिटिशर्स रूल करते थे. सो क्वीन विक्टोरिया 63 years and 7 months रूल करे. She ruled for 63 years and 7 months. Before this, Queen Elizabeth Queen Elizabeth 2015 में इनका रिकॉर्ड तोड़ दिए, and she became the longest monarch queen. मतलब पहले क्वीन विक्टोरिया थे, अभी प्रेजेंटली जो है फर्स्ट पोजीशन पे क्वीन एलिजाबेथ है जो सबसे ज्यादा रूल करे, एंड सेकंड पोजीशन पे क्वीन विक्टोरिया है, लेकिन 2015 तक इन्हों ही ये फर्स्ट पोजीशन पे थे. अब देखते हैं लाइफ में क्या क्या टाइटल्स मिले. In the year 1876, she won the title of Empress of India. It was the time when India was colonized by British. क्वीन विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया का टाइटल मिला जब ब्रिटिशर्स इंडिया पे रूल करते थे. ये इनको मिला इन द ईयर 1876. The Victorian period is divided into three parts: early Victorian period, mid Victorian period, and late Victorian period. Let me write it for you. Early Victorian period, late Victorian period, and early Victorian period, mid and late Victorian period. (1837 to 1848) जो था अर्ली विक्टोरियन पीरियड था. 1848 to 1870 was mid Victorian period,
and 1870 to 1901 was late Victorian period. So beside this, what was happening in the history, let's see. So इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज में डेवलपमेंट हो रहा था, साइंटिफिक चेंजेस, साइंटिफिक साइंटिस्ट न्यू न्यू चेंजेस ला रहे थे. इन दिस पीरियड नॉवेल्स वर रिटन मोर. ये पीरियड में नॉवेल्स सबसे ज्यादा लिखे गए एंड दिस पीरियड इज ऑल्सो नोन एज द पीरियड ऑफ नॉवेल्स. ये पीरियड को नॉवेल्स का पीरियड भी कहा जाता है. एंड द कॉम्पिटिशन वॉज वेरी हाई in the developments. Matlab every country was so much into the competitions, like they wanted to do better than the country in front of them. तो सारे लोग का कंपटीशन इतना इंक्रीज हो गया था, सब लोग चाह रहे थे कि वो अपना बेस्ट एंड बेस्ट दें. एंड इम्प्रूवमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी कंटिन्यूसली इम्प्रूव होते जा रही थी. और ब्रिटिशर्स कॉलोनीज बनाना शुरू कर दिए थे दूसरे कंट्रीज में, उन लोग को कॉलोनाइज्ड कर लिए थे. एंड दिस वाज द पीरियड व्हेन कैमरा एंड टेलीग्राफ केम इनटू द एग्जिस्टेंस. ये पीरियड में कैमरा और टेलीग्राफ आया एग्जिस्टेंस में, जहां पर एक तरफ ये सारे डेवलपमेंट हो रहे थे बट वुमेन वाज सप्रेस्ड बाय द kingdom or by the society. Women did not got the equal rights and they were being tortured for many years. And उन लोग को ये था कि they cannot show their own identity. और जो ये टाइम के फीमेल्स राइटर्स थे, इफ दे वांटेड टू पब्लिश समथिंग, तो लोग उनके नाम से पब्लिश नहीं करा सकते थे, वो लोग कोई मेल के नाम से पब्लिश कराना पड़ता था. एंड दिस वाज द पीरियड ऑफ हैव्स एंड हैव नॉट्स, रिच एंड पुअर. और एंड दिस इज द पीरियड वेयर वोटिंग सिस्टम, जिसको यूनिवर्सल मैनहुड सफरेज भी कहा जाता है, लेट मी राइट इट फॉर यू. वोटिंग सिस्टम, ये पीरियड में आया था वोटिंग सिस्टम, जिसको यूनिवर्सल मैनहुड सफरेज भी कहा जाता है. जब इंसान क्यों सफर करे, कोई भी इंसान क्यों सफर करे, वो सबको अपना राइट है कि हम खुद वोट दें एंड वी कैन सेलेक्ट आवर ओन पार्लियामेंट, वी कैन सेलेक्ट आवर ओन किंग एंड क्वीन. सो और ये ही पीरियड है जब इट वाज डिसाइडेड कि एनुअल इलेक्शंस शुड हैपन. एनुअल इलेक्शंस होते पार्लियामेंट में एंड जो लोग पार्लियामेंट के इलेक्शंस के लिए जिसको चूज करते, वो ही पार्लियामेंट के इलेक्शन के सीट्स पे बैठना, ये डिसाइड हुआ था. और यही पीरियड है जब ग्रेट एग्जीबिशन ऑफ लंदन, इंग्लैंड, यूके. सो यही पीरियड में ग्रेट एग्जीबिशन हुई थी. ये एग्जीबिशन वाज हेल्ड एट द क्रिस्टल पैलेस. ये एग्जीबिशन क्रिस्टल पैलेस पे हुई थी. And this exhibition happened because ब्रिटिशर्स जब कॉलोनाइज्ड कर लिए थे, तो लोग सबको बताना चाह रहे थे कि हाउ पावरफुल दे आर, वो लोग कितने पावरफुल है, वो लोग व्हाट आई कैन से, उन लोग के पास क्या क्या है, लाइक शो ऑफ करना चाह रहे थे वो लोग. इसीलिए वो लोग ये एग्जीबिशन हेल्ड करें. सो वेयर वर वी रहे. The novels of the Victorian era are generally based on very strong concept of morality. जो novels थे ये period के, वो morality पर डिपेंड करते थे. और ये ऐसी सोसाइटी थी जहां पर इंडस्ट्रीज रैपिडली इंक्रीज हो रहे थे और बहुत सारे लोग इंडस्ट्रीज के इंक्रीज होने में सोसाइटी को भूल गए, हार्ड वर्कर ऑफ सोसाइटीज को भूल गए. और एक तरफ जो वर्कर्स की, लेबर्स की एक हार्श रियलिटी थी, जो सफर कर रहे थे लोग, वो सारे चीजों को लोग भूल गए. So it is said that many literature works sought to bring out the harsh reality of a landless working class and portray the actual condition of the society. तो उस टाइम के लोग राइटर्स क्या करना शुरू करें, जो हार्श सोसाइटी का जो
एक्चुअल है वो अपने आर्ट के थ्रू, अपने पोएम्स के थ्रू, अपने लिटरेचर के थ्रू लोगों को पहुंचाना शुरू करे कि दिस इज द अदर साइड। एक तरफ ये डेवलपमेंट हो रहा है, दूसरे तरफ लोग ये सब भी सफर कर रहे हैं। फेमस राइटर्स कौन है विक्टोरियन एरा के? Famous poets. Let's see first famous poets. So Charles Dickens. Charles Dickens was the first famous poet. He was known because he was known first poet of this era because he was the first person who wrote novel. इनकी नॉवेल का नाम था द पिकविक पेपर नॉवेल, जो विक्टोरियन पीरियड से पहले इन्हों लिख चुके थे। इसके लिए मैं आप लोग को पहले भी एक एग्जांपल दी। एक एप्पल है तो वो एप्पल ऐसे ही नहीं बन जाता, पहले वी हैव टू सो द सीड्स, फिर वो फूल आता, फिर एप्पल बनता एंड हल्लू हल्लू एप्पल राइप होता। तो कोई भी पीरियड हो, नॉवेल का जैसा पीरियड हो, सडन नहीं आ जाता, स्लोली 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 होकर आता वो पीरियड। तो इसीलिए पहले ही लिख चुके थे इनकी नॉवेल। उसके बाद जो बहुत फेमस है वो है ब्रॉन्टी सिस्टर्स। देयर वर थ्री सिस्टर्स, ये लोग तीन बहनें थे, बट टू ऑफ देम वर वेरी फेमस। सो दे प्रोड्यूस सम ऑफ द लिटरेचर मास्टरपीसेस ऑफ देयर पीरियड, जिसमें है वथरिंग हाइट्स जो इमिली ब्रॉन्टी ने लिखी थी। दिस वॉज अ टेल, ये जो वथरिंग हाइट्स है ये नॉवेल एक स्टोरी है जो अनरिजॉल्व पैशन, ऐसा पैशन जिसका मतलब अभी कोई रिजॉल्व नहीं हुआ इशू, वैसे पैशन के बारे में इन्हों लिखे और इन्हों इसमें पिक्चर करे कंटेम्पररी सोसाइटी कैसी है। दूसरे जो इनके सिस्टर है, शी इज जेन एरी। इन्हों जो नॉवेल लिखे, चार्लेट ब्रॉन्टी, इन्हों जो नॉवेल लिखे इसका नाम है जेन आयरी। ये नॉवेल में इन ग्रोथ ऑफ अ यंग वुमेन, वुमेन के ग्रोथ के बारे में लिखे जो उस टाइम बहुत जरूरी था। द अदर फेमस राइटर्स ऑफ द विक्टोरियन इरा इंक्लूड, दूसरे फेमस राइटर्स थे ये पीरा जॉर्ज इलियट। सो बेसिकली जॉर्ज इलियट नाम सुनने पे आपको क्या लग रहा? ये कोई मेल का नाम है? यस, ऑब्वियसली ये एक मेल का नाम है, बट ये मेल के नाम से लिखा करती थी एक लड़की जिसका नाम है, जो पोएट है, मैरी एन। तो उस पीरियड पे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वुमेन्स को अलाउ नहीं था कि वो अपने नाम से कुछ पब्लिश कर सके, उतनी अथॉरिटी नहीं थी वुमेन्स को। तो मैरी एन क्या करते थे, जॉर्ज इलियट नाम से अपने पब्लिश कराया करते थे नॉवेल्स राइटिंग्स। इनके नॉवेल्स रियलिज्म के ऊपर डिपेंड करते थे और बहुत ही डीप साइकोलॉजिकल इंसाइट होता था इनके नॉवेल्स में। इनके फेमस नॉवेल है एडम, एडम बे एंड मिडिल मार्च। ये दो इनके फेमस नॉवेल्स है मैरी एन के। Next, we'll see who are the famous non-fiction writers of that period. So, the Victorian era witnessed the creation of several scholarly works. The Communist Manifesto, where Karl Marx and Frederick analyzed the emerge of several state systems and forecast the rise of communism. It was written about communist at that time. तो एक ऐसा टाइम था, so that was the time जब
कम्युनिज्म के बारे में लिखा जाता था, तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक। फर्स्ट विल सी व्हाट इज नॉन फिक्शन। रियलिटी के बारे में जो लिखते हैं दैट्स नॉन फिक्शन। फिक्शन मीन्स व्हाट वी कैन से स्टोरीज, इमेजिनेशन। नॉन फिक्शन मीन्स रियलिटी। तो जबकि जो हार्श रियलिटीज थे वो कम्युनिज्म में लिखे जाते थे। तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक दो ऐसे राइटर्स थे जो कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट पार्टीज के बारे में लिखे थे। और द लिस्ट ऑफ द फेमस राइटर्स ऑफ द विक्टोरियन एरा इज थर्स लॉन्ग एंड इलिस्टेरियस। ये एरा के राइटर्स की लिस्ट बहुत ही लॉन्ग है और वी कैन नॉट लर्न अबाउट देम ऑल। और ये लोग, ये जो राइटर्स थे ये एरा के, ये लोग क्या करे, एक ट्रेजर दिए इंग्लिश लिटरेचर को, खजाना दे दिए। वो खजाना नॉवेल्स का था। So Victorian era was known as the era of novels. ये क्वेश्चन आप लोग को आ सकता है 1 मार्क्स के लिए, फॉर 1 मार्क। ओके, इम्पोर्टेंट है, नोट इट डाउन। विक्टोरियन पीरियड वाज द पीरियड ऑफ नॉवेल्स। इसी तरह से जो रोमांटिक एरा था, जो अपन लास्ट क्लासेस में पढ़े थे, रोमांटिक एरा वाज द एरा ऑफ पोएट्री। ये भी आ सकता है आप लोग को। रोमांटिक एरा वाज द एरा ऑफ, ऑप्शंस में दे सकते हैं नॉवेल, प्रोज, poetry. The Romantic era was the era of poetry. And Elizabethan era, Queen Elizabethan era जो था, that was the era of drama. ये 3 बुक mark them. मैं एमसीक्यूज भी इसी के बना के दूंगी आज आप लोग को। जो नॉवेल्स का एरा था, विक्टोरिया। जो रोमांटिक एरा ऑफ पोएट्री। एंड जो एलिजाबेथन एरिया था, दैट वाज द एरा ऑफ ड्रामा। सो आई होप आज का टॉपिक क्लियर है आप लोग को।